السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. راگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہوں کہ جناب آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. تو جناب آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے, تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک نمایاں کردار ادا کیا اور جد و جہد کی. آج ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کے موقع پر ایک عظیم, باہمت اور باکردار خاتون کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, جنہوں نے نہ صرف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ تحریک آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا, بلکہ قیام پاکستان کے بعد خواتین کی رہنمائی کی, ان کے حقوق اور ان کے سیاسی شعور کے فروغ میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی. فاطمہ جناح نے ایک وفادار اور مخلص بہن کے طور پر قائد اعظم کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں ان کا ساتھ دیا. ان کی طبی نگہداشت سے لے کر ان کی جو سیاسی میدان تک ہر قدم پر ان کی ہم قدم رہی. وہ تحریک پاکستان کی ان چند نمایاں خواتین میں شامل تھی جنہوں نے عملی طور پر خواتین کو سیاسی طور پر بیدار کیا. پاکستان بننے کے بعد وہ خواتین کے لیے ایک ایسا منارہ نور بن گئیں جو آج بھی ویمن امپاورمنٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ہمیشہ خواتین کو تعلیم, خود مختاری اور قومی معاملات میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. ان کی جد و جہد اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ عورت صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں, بلکہ وہ ایک قوم کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. آج کی عورت کے لیے فاطمہ جناح نہ صرف ایک سیاسی رہنما ہیں بلکہ ایک مکمل رول ماڈل ہیں جن سے حوصلہ, خودداری اور خدمت کا سبق سیکھا جا سکتا ہے. تو آج ان کی 58ویں برسی ہے, تو اس کے موقع پر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کے بارے میں کچھ چند چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ, ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو یہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے, اس حوالے سے شیئر کیا ہے آپ کو. ابھی آگے بڑھتے ہیں جناب اور کچھ بات کر لیتے ہیں آج کے نوجوان کے حوالے سے, کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے نا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کمانا بھی چاہتا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جناب کامیابی کی راہ جو ہے وہ یوٹیوب سے گزرے یا پھر فری لانسنگ سے گزرے. ایک طرف یوٹیوب ہے جہاں اپنی آواز, اپنا چہرہ, اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس سے دنیا کو متاثر کیا جا سکتا ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ ہے جہاں آپ اپنی سکلز جو ہے نا وہ بیچ سکتے ہیں اور اس کے تھرو پیسے کما سکتے ہیں. یوٹیوب پہ شہرت ہے, فالوورز ہیں, مگر مقابلہ بڑا سخت ہے. فری لانسنگ میں پیسے تو ہے مگر آپ کی کنسسٹنسی کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنے کنسسٹنٹ رہتے ہیں. آج کے نوجوان کی سب سے بڑی کنفیوژن یہی ہے کہ آخر کون سا راستہ آسان ہے, بہتر ہے اور مستقبل اس کے اندر وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو آج کے شو میں اسی سوال کا ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے کہ فری لانسنگ اور یوٹیوب کون سا بہتر آپشن ہو سکتا ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں عمر حدید سلطان نے جوائن کیا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. عمر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عمر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فری لانسنگ اور یوٹیوب ایک ہی چیز ہے یا دونوں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں, دونوں ڈفرینٹ ان کے اوپر کام ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, دونوں ڈفرینٹ چیزیں, سیپریٹ چیزیں ہیں بہت زیادہ, لیکن دونوں اینڈ نہیں ہیں, بگننگ ہے. اوکے. فری لانسنگ دیکھیں میں سمپلیفائی کر کے بتانا چاہوں گا. روڈ میپ ہوتا ہے ہر چیز کا, آپ کا کریئر کا روڈ میپ ہے. جیسے آپ کی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا ایک کریئر تھا, میپ تھا, ایک روڈ میپ جس میں آپ نے فرسٹ گریڈ سو آن او لیولس کیا, کسی نے میٹرک کیا, اور پھر آپ نے گریجویشن کی, پوسٹ گریجویشن کی, پھر اس میں کس میں. اسی طرح یور فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز یور انٹرپرینورشپ از فری لانسنگ. اوکے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا آپ کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہے تو آپ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. آپ نے وہ اسکل اپنی جو ہے نا بیچنا شروع کی, لوگوں کے پرابلم سالو کرنا شروع کر دیے, سروسز ہو گئیں, تو اس کے اندر فری لانسنگ ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آف کورس جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اس کے کچھ پروز ہیں, کچھ کونز ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے یا فری لانسنگ ہے, یہ اسٹیپنگ سٹون ہے. یہ اینڈ آل بی آل نہیں ہے آپ کے کریئر کا, آپ کے پرپس کا, آپ کے مشن کا. فری لانسنگ
एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप है. अच्छा. आपने फ्री लांसिंग से स्टार्ट किया, आपने एक स्किल एक्वायर की, आपने तालीम मुकम्मल की, आपको एक चीज़ आती है, उसके ऊपर आपने सर्विसेज देना शुरू की. सो फ्री लांसिंग आपके लिए एक दरवाज़ा है जो खुलता है आसानी के साथ. लेकिन बहुत से लोग हैं वो तो सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग ही करते रहते हैं. अभी भी अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो लोग यही कहते हैं जी फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं. ये नहीं कहते कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, आप अपना कुछ डेवलप करें, अपने बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाएं. वो फ्रीलांसिंग की तरफ, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप है, तो इसको फिर आखिरी क्यों बना दिया जाता है? रियली गुड क्वेश्चन जी, बहुत अच्छी. मैं असल में जब भी कहीं बैठता हूँ या कहीं बात करता हूँ लोगों से, तो यही बताता हूँ, स्पेशली अपनी आवाम में. हमारे इलाके में एक ये बहुत कॉमन वर्ड है फ्रीलांसिंग का. देखिए, फ्रीलांसिंग हमने नहीं बनाया, फ्रीलांसिंग बाहर से आया. जब गोरों को पता चला कि भाई वो जो काम अपने लोगों से करवाते हैं वो महंगा बनता है, हमें पेनीज और डाइम्स के ऊपर वही सर्विस या उससे बेहतर सर्विस मिल सकती है हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, राइट. तो हमारे दौर में स्टार्ट हुआ. तो ये 1990s लेट 90s में स्टार्ट हुआ. हमारे मुल्क में 2006-2007 में हुआ और उस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया. सो वी वर द पायनियर्स ऑफ लाइक, उस हमने स्टार्ट किया. तो हम ऑफ कोर्स दुनिया में कॉन्सेप्ट आया था तो फिर हम उसको लेकर चले. लेकिन अब हमने अपनी जनरेशन को ये बताना है. इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट थिंग देन एनीथिंग एल्स. फ्रीलांसिंग करें आप, लेकिन सेट योरसेल्फ अ स्टैंडर्ड जहाँ पे आपने एक पर्पस और गोल रखें, बड़ा रखें कि यस मेरी एंट्री यहाँ से हो रही है, लेकिन आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, आई एम अ सोलोप्रेन्योर राइट नाउ. इवेंचुअली आई एम गोना बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सर्विसेज दूंगा, करते करते इसको बड़ा करूंगा, लेकिन साथ कुछ अपना भी बनाऊंगा. सही. और उसके ऊपर काम करूंगा, क्योंकि दुनिया में इवेंचुअली या अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन सर्विसिंग. It's a very thankless job, क्योंकि you're making, creating, inventing stuff for other people. और कब तक करेंगे? पैसे तो मिल गए, पैसा आपको मिला, आपने यूज़ किया, आपने स्केल किया, आपकी कंपनी बड़ी हो गई, आप अकेले थे, 3 हो गए, 5 हो गए, 15 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए. Of course you're gonna make money, but your legacy isn't just about money. Your legacy is about कि आपके जाने के बाद या जब आप रिटायर होते हैं, दुनिया में नहीं होते, उसके बाद दुनिया में आप कौन सा ऐसा काम या चीज़ छोड़ गए हैं which is helping and solving problem for others. तो दुनिया इस तरह कंस्ट्रक्ट हुई है. ठीक है, हमारा वो टाइम था, we were part of the developing countries, हमें ये स्टेप लेना था जहाँ हमें फ्रीलांसिंग करनी थी. You should start, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, फ्रीलांसिंग इज़ अ रियली गुड स्टेप आपको एंट्री पॉइंट देने के लिए. बट देन यू हैव टू बिल्ड योर करियर फ्रॉम फ्रीलांसिंग. सेम. एंड देन सेम गोज फॉर यूट्यूब. यूट्यूब पर भी यही है. देखिए, यूट्यूब इज, बट यूट्यूब पे आजकल सिर्फ हमें ब्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. यूट्यूब पे जो यंग जनरेशन है हमारे, उनको ये लगता है कि हमारे पास एक फ़ोन होगा और हम जो है ना बोलना शुरू कर देंगे, कैमरे पे आना शुरू कर देंगे, अपनी पूरी दिन की जो रूटीन है वो दिखाना शुरू कर देंगे और उससे हमें पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. वाकई सिर्फ ये है यूट्यूब की अर्निंग? देखिए, इतना आसान है. दैट्स वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ यूट्यूब का. ठीक है, यूट्यूब के और बहुत सारे फ़वाइद हैं. दुनिया में thousands and thousands of different channels are on YouTube. YouTube is what? YouTube is content. हम जिस मार्केट में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं अभी, कंज्यूमर मार्केट है. इसमें 2 तरीके के इंसान हैं. ईदर यू आर अ कंज्यूमर और यू आर अ क्रिएटर. ठीक है, या फिर यू कैन बी बोथ. लेकिन दुनिया में सक्सेस या एक्सेल वो लोग कर रहे हैं जो क्रिएटर साइड पे ज़्यादा हैं. ऑफ कोर्स यूट्यूब पर एक क्रिएशन ये भी हो रही है कि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट दैट्स जस्ट वन सेगमेंट. दैट्स द ईजीएस्ट सेगमेंट दैट यू कैन गेट. दैट्स द वेरी इन्फेंसी और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं यूट्यूब के यूजेज के. लेकिन सिर्फ ये नहीं है, हमें अपने बच्चों का, नई जनरेशन का ये दिमाग खोलना है कि इसके और बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं जिससे आप टैप इन करके यूट्यूब को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हो. और कैसे, फॉर एग्जांपल क्या और ऑप्शंस या चीज़ें हो सकती हैं उनके पास? देखिए, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, राइट. ये दुनिया जिसके अंदर हम ब्रीथ कर रहे हैं हमारे टाइम्स में, इट्स ऑल अबाउट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. हर चीज़ कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है. और उस आईटी के अंदर सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें हैं. वन इज़ ब्लॉकचेन, द अदर इज़ एआई. एआई के अंदर फिर सबसेट्स हैं. सो यू गो एंड स्टार्ट
टीचिंग पीपल अबाउट व्हाट यू डू, ठीक है, लेकिन उस क्रिएटिव तरीके से बताओ कि लोग उससे रिलेट कर सकें, देखिए इट्स ऑलवेज अबाउट योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन हो गई है मार्केट में, ये नहीं, कभी भी नहीं हो. सैचुरेशन होती है और फिर उसी में हम देखते हैं कुछ ऐसी नई चीज़ आती है, नया ब्रांड आता है जो सैचुरेटेड मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करता है और डिसरप्टिव हो जाता है. सो इट्स जस्ट दैट कि आपको एक वो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आना है, वो यूनिक एंगल लेकर आना है, अपना ऑथेंटिक पॉइंट बताना है जो लोगों को रिलेट कर सके और नया हो, फ्रेश हो. सो यू कैन टीच अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन यूट्यूब. सही है, मतलब आपके पास वास्ट ऑप्शंस हैं, बस हम लोग क्लिक उन्हीं चीज़ों पे करते हैं, इंटरेस्ट हमारा उन्हीं से डेवलप होता है जो हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, बिकॉज आजकल सिर्फ यूट्यूब पे व्लॉगिंग ही चल रही है. अच्छा मुझे ये बताएं, यूट्यूब पे भी आपने बात कर ली, उसको ज़रा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दिया, फ्रीलांसिंग पे भी बात कर ली. अब यंग जनरेशन कहती है कि मेहनत किस में कम लगती है, यूट्यूब पे अगर हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएं या फिर फ्रीलांसिंग पे हम अपने स्किल्स के हवाले से काम करें और वहाँ से हम लोग डॉलर्स कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, मेहनत किस में कम लगती है? देखिए मेहनत तो सब में लगती है. दैट इट्स अ फैलेसी दैट यू कैन ईजिली फॉल फॉर. अगर आपने कुछ ज़िंदगी में उनको भी हीरो बना लिया जिन्होंने, जो बज़ाहिर नज़र ये आता है कि क्विक दे मेड क्विक मनी या क्विक फेम मिल गया, ऐसा नहीं होता कभी भी. उसके पीछे उनकी स्टोरी होती है, यू जस्ट लुकिंग एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग और आपको लग रहा है कि उन्होंने बड़ी जल्दी कमा, तो आपने उनकी सारी मेहनत नहीं देखी. या अगर किसी ने कर भी लिया है तो उनको, अब इशू ये है कि इट्स नेवर लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, आपको कोई शॉर्टकट मिल गया, आपने कोई कॉर्नर कट कर लिया या आपने कोई इजी वे ढूंढ लिया फेम हासिल करने का या पैसे हासिल करने का, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. मेहनत, दुनिया में दो चीज़ें आप करें, यू आर गारंटीड सक्सेस, अदरवाइज यू आर नॉट. वन इज़ योर absolute dedication, which is discipline. Okay. अगर आप discipline है, plus you're authentic and purpose driven. अगर आप authentic हैं और आप disciplined हैं, and what is discipline? Discipline is कि जो चीज़ मुझे जिस दिन करने का दिल भी नहीं कर रहा, उस दिन भी करो, उस दिन भी करो, क्योंकि वो मेरे टाइड है गोल के साथ. Exactly, हाँ. So if you're doing it, so बॉटम लाइन इज के मेहनत के बगैर कोई चीज़ आसान नहीं है, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है. बिल्कुल ऐसी, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल क्या है. ठीक है, कि आपने किस साइड पर जाना है, आपका गोल क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी जा सकते हैं, यूट्यूब की तरफ भी जा सकते हैं, और इवन दोनों को साइड बाय साइड भी लेकर चल सकते हैं. ये आपका पोटेंशियल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर अगर आपने इसमें करियर ऑप्ट करना है. तो हमारे साथ उमर हदीद मौजूद थे, IT एक्सपर्ट हैं. उमर, थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की है. जनाब, बदकिस्मती से पाकिस्तान में कम उम्र ड्राइविंग के रुझान में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, और ये नौ उम्र ड्राइवर्स नीम हकीमों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं हमारी जानों के लिए. कम उम्री की ड्राइविंग का हर कोई गवाह है. हम रोज़ाना अपने इर्द गिर्द नौ उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते हुए या फिर गाड़ियाँ दौड़ाते हुए देखते हैं, और ऐसा ही 2 दिन पहले भी लाहौर के इलाके शादरा में लग्जरी गाड़ी चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर की टक्कर से एक शख्स की हलाकत हुई है और 2 अफराद के ज़ख्मी होने का अफसोसनाक हादसा भी पेश आया है, जिसके तहत ऐसे बहुत से कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होता है. अब इस ज़िम्न में सबसे पहले और सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो वालिदैन हैं जो अपने नाबालिग और कम उम्र बच्चों को बड़े फ़ख्र से ड्राइविंग सिखाते हैं, और ये जानते हुए भी कि उनके इस इक़दाम से उनके बच्चों की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है. और बहुत कम लोग हैं जो इस मसले की संगीनी का इदराक करते होंगे. लेकिन फिर ये सवाल आता है कि ऐसे हालात में उन बच्चों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और इस ज़िम्न में वालिदैन का क्या किरदार अदा होना चाहिए या किस तरह का वो रोल प्ले कर सकते हैं. तो इस पर बात कर लेते हैं. माहिर नफ्सियात हमारे साथ डॉक्टर राफिया मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में. उनसे जानते हैं कि ये आजकल के वालिदैन की
ذمہ داریاں جو ہیں obviously ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ باہر نکل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے. وہ 13 سال کا بچہ, یہ ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ شادرہ میں پیش آیا, 13 سال کا بچہ تھا اور وہ اتنی بڑی گاڑی چلا رہا تھا اور جس نے یہ حادثہ جس کی وجہ سے پیش آیا. تو یہ والدین کی نیگلیجنس جو اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہمارے معاشرے میں تو کہوں گی کہ المیہ ہی ہے یہ کہ اتنے زیادہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ صرف کوئی پہلا کیس نہیں ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے, اس سے پہلے بھی کئی متعدد کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کم عمر ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زد میں آ کے کتنے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. اپنی بھی ایگزیکٹلی اپنی بھی ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آج کل جو پیرنٹس ہیں نا بہت نگلیکٹفل پیرنٹنگ ہے. پیرنٹس کے پاس شاید ٹائم ہی نہیں ہے. پیرنٹس اس طریقے سے بچوں کے اوپر مانیٹرنگ نہیں کر رہے. بچوں کو ویلیوز, موریلٹی, ایتھکس, لا کے بارے میں جو ہے, جب آپ انکنسسٹنٹ میسیجز دیں گے نا تو کہ کبھی گاڑی لے گئے تو غصے ہو گئے, کبھی لے گئے تو کبھی کہہ دیا کہ چلو کوئی نہیں, بڑا ہو رہا ہے سیکھ جائے گا. مطلب ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف somebody else's life. دیکھیں آپ کا بچہ جا رہا ہے, اب یہ جو کیس ہوا ہے 13 سال کا بچہ, پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈیولپ ہونے میں, جو کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں ہے, جو آپ کی امپلسیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کرتا ہے, وہ تو جا کے کہیں 18 کے بعد اور 20 سال میں جا کے ہوتی ہے. آپ ایک 13 سال کے بچے کو اتنی بڑی ایک گاڑی دے رہے ہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا محاورہ سنا ہوگا, اسپیڈ تھرلز بٹ کلز. وہ کیا ایک نفسیاتی اس کے پیچھے میکانزم ہے کہ بچہ جب گاڑی چلاتا ہے نا اور جب اس کو بڑی گاڑی ملتی ہے تو وہ ایک طرح کے ہائی اس میں آ جاتا ہے, اور ایکسائٹمنٹ میں آ جاتا ہے. ڈوپامین رش ہوتا ہے جب وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے, اسپیڈ دیتا ہے اور تیزی سے چلاتا ہے, گاڑی کی آواز زوم کر کے جب جاتی ہے وہ اس کو ایک تھرل دیتی ہے, سینسیشن دیتی ہے, اور اس کے برین میں ڈوپامین رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اور جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے اور اسپیڈ لیتا ہے. لیکن یہ خوشی کیوں بچے چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو گھروں میں خوشی نہیں دے رہے؟ واٹ از لیکنگ ان پیرنٹنگ؟ یا ہمارے بچوں کی نفسیاتی فیبرک میں کیا چیز کی کمی ہے؟ وہ کیوں خوشی چاہ رہا ہے ایک وہیکل چلانے سے؟ کیا اس کو اپنے گھر کے اندر خوشی نہیں مل رہی؟ میں نے کہا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بچے جب گھر میں کنٹینٹڈ ہوگا, جب اس کی پیرنٹس سے کمیونیکیشن اچھی ہوگی, پیرنٹس کی مانیٹرنگ ہوگی, جب آپ کی نگلیکٹفل پیرنٹنگ ہوگی, آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز گھر کے نہیں ہوں گے, آپ بچے کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے چیزوں پہ چھوٹے ہوتے سے, تو وہ بچے کہتے ہیں نا کہ وہ پھر شتر بے مہار جو مرضی ان کا دل کرے گا وہ کریں گے. یہ نگلیکٹنگ پیرنٹنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ مطلب ہم تو ابھی بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں, گھر سے فون آ جاتے ہیں ماں باپ کا کہ جی کدھر رہ گئے ہیں, واپس کیوں نہیں آئے ابھی تک. تو یہ تو مطلب آج کل کے پیرنٹس کو کیا ہو گیا ہے؟ پیرنٹس جو ہیں میرا خیال میں شاید ہماری پیرنٹنگ کی پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں. پیرنٹس یہاں تو پہلے ہوتا تھا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. میں ہمیشہ میڈیا پہ آ کے اس بات کی تعریف کرتی ہوں کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اگر کوئی نگلیکٹ کر رہا ہے نا بچے کو تو دادا دادی بیٹھے تھے, ہوتے ہیں, ہاں جی چچا بیٹھے ہیں, ہر بندہ اس کو مانیٹر بچے کو کر رہا ہوتا تھا. اور جب آپ اس کو روکتے ٹوکتے ہیں بری بات سے اور اس کو اچھی بات بتاتے ہیں تو اس کی جو مینٹل گرومنگ ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ بچہ جو ہے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے, پیرنٹس کام پہ گئے ہوئے ہیں یا اپنا پارٹی ٹائم کر رہے ہیں یا اتنے مصروف ہیں کمروں میں بیٹھے ہیں اپنے موبائلز پہ, بچہ گاڑی اٹھاتا ہے, اس چابی اٹھاتا ہے, اس کو ملازم کہتا ہے نہ لے کے جاؤ, وہ کہتا ہے تم چپ کرو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں کنڈکٹ کی بھی بہت سی باتیں ہیں. یہ بچے اس طرح کی حرکتیں کرنا پسند کرتے ہیں یا کرتے ہیں, اس میں پیرنٹس کے آگے آپ آگے آ جائیں تو یوزلی ان میں کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ایسی امپلسیوٹی ہوتی ہے, تھرل سیکنگ کا شوق ہوتا ہے, اور وہ لو سیلف اسٹیم میں اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے گھر سے اپریسیشن نہیں نہ مل رہی ہوتی. پیرنٹس ہر چیز پہ ڈانٹ رہے ہیں یا کسی چیز اچھی بری میں کوئی ان کو کسی قسم کی فیڈ بیک نہیں مل رہا. تو بچہ نا اپنے آپ کو ایک ہائی فیلنگ میں لانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے, وہ گاڑی تیز چلائے گا, لوگوں سے لڑے گا. اور ایک اور یہ نا پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے, دیکھیں نا 13-14 سال بچہ نا گرو کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اس میں پیوبرٹل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹو
टेस्टोस्टेरोन बढ़ा होता है बच्चों में, लड़कों में, और उसमें एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर ये है कि कई दफ़ा आपके दोस्त जो होते हैं ना इस उम्र में, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा पीछे सोशलाइजेशन के एजेंट में चले जाते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, कंपनी जो हाँ होती जी, है ना, कंपनी वो कहते हैं हाँ। भाई बड़ी अच्छी गाड़ी है, तुमने अभी अपने अब्बू की गाड़ी ट्राई नहीं की, अच्छा चलो और ट्राई करें। मतलब अक्सर ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें 4-4 बच्चे एक गाड़ी में जा रहे हैं और एक भी बंदा ट्रेन्ड ड्राइवर नहीं है, और पूरी बच्चे जो है वो फेटल एक्सीडेंट हो जाता है। और वैसे भी पूरे दुनिया में फेटल एक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है हमारे, तो यहाँ पे बिल्कुल लोगों को डर नहीं है ना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कभी पकड़ लेती है और कभी आप कार्ड दिखा के कि जी मैं निकल जाते हैं, मैं फलाने लॉयर का बेटा हूँ तो मैं ये जज का बेटा हूँ, तो वो आप कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी जितने फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनमें 35% जो होते हैं ना वो इस तरह की कम उम्री के, पर इतनी कम उम्री नहीं होती। मतलब ये तो एक हैरत कौन बात है, निकलने ही नहीं देते हैं वहाँ पे तो। और आप सोचे कि इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने एआई पे चेक किया कि परसेंटेज देखूं कि कितनी परसेंटेज के हैं, तो उन्होंने लिखा कि 13 इयर्स में तो कोई भी नहीं गाड़ी चलाता। तो दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें 13 तो मेरा ख्याल में एक ऐसा कट ऑफ है जो सिर्फ हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। बच्चा क्या 7th ग्रेड में होगा, 7th और 8th ग्रेड में होगा, तो क्या ही वो बच्चा है अभी। तो इसमें जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के भी ट्रेंड्स हो सकते हैं बच्चे में। जब बच्चे में एक इम्पल्सिविटी होती है, बच्चे में हर चीज़ की आगे इनकार करना हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे बच्चे बड़े होकर जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स भी बन जाते हैं, और कंडक्ट का तो उनके अंदर पैरा। कई दफ़ा ये होता है कि आपका बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होता है। आपने देखा कई पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल टाइम नहीं देते, लेकिन बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि चलिए हम कंपनसेट कर लें, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम बाकी हर चीज में कंपनसेट करें, हालांकि वो सही नहीं है। बिल्कुल, अगर आज पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो ये सुन लें कि आपकी कितना भी पैसा आप बच्चे को दे दे, कितनी बड़ी गाड़ी भी दे दे, लेकिन आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपका उसके साथ जो एक कम्युनिकेशन है, अगर वो गैप होगा तो बच्चे को ये चीज़ें ख़राब करेंगे। तो ये लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होता है ना, वो अपने गिल्ट को पेरेंट्स दूर करने के लिए कर रहे होते हैं। तो इस तरह के बच्चे आगे जाके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मतलब ये कि इतना बड़ा ये जुर्म है कि आप सिर्फ यू आर नॉट रिस्किंग योर ओन लाइफ, मगर आप रोड पे चलते हुए उनको जो है ना लोग खड़े हैं उनको मार दिया। एग्जैक्टली, अभी भी आप वो 3 लोग जो हैं, 2 तो जख्मी है, एक की हलाकत हो गई है, और इसके अलावा वहाँ पे कितने लोग जो है जख्मी हुए होंगे। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा ये जो शादरा में कम उम्र ड्राइवर की वजह से मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक शख्स की हलाकत हुई है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये 14 साल लड़का हाशिर है जिसने जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसके नतीजे में हादसा हुआ और हलाकत सामने आई और जख्मी भी जो है वो फरार हुए। इस केस में जो है वो मुल्ज़म का रिमांड लिया गया है और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, उसी दिन ही जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब जो है रिमांड लिया जा रहा है और दीगर मुल्ज़मान हैं उनको इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। बच्चे के जो मामू है खुरम, उसको भी इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। उसने इस केस से मुकम्मल तौर पर लाजमी का इज़हार किया है। तो कहते हैं कि मुझे कोई पता नहीं बच्चा कब घर से जो है वो गाड़ी लेकर गया है और कहाँ गया है। उसने मुकम्मल तौर पर वो इस वाक़े से उसने कहना है कि मुझे कोई पता नहीं है, मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ। ताहम जिसकी गाड़ी थी जो कि कंपनी का एक मैनेजर था, उसकी गाड़ी थी, वो भी ये कह रहा है कि गाड़ी जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो चाबी चुरा के लेके गया है और वो भी इस जो है ना इस वाक़े से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तफ्तीश ये कहती है कि गाड़ी खुद जो है उसने, जो गाड़ी का कंपनी का मालिक है मैनेजर उसने दी है और खुद उसने गाड़ी दी है। हालांकि उसको पता भी था कि इसको गाड़ी चलाना नहीं आती, अच्छी तरीके से गाड़ी बच्चा नहीं चला सकता, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है वो चाबी दी है, जिसके नतीजे में वो हादसा हुआ है। और जो मैनेजर है उसे चलाकी ये करने की कोशिश की है कि उसने थाने में भी दरखास्त दे दी है कि मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है, ताकि मैं इस जो कार्रवाई है उससे बच सकूं। और इस केस में जो है वो पुलिस का कहना है कि तमाम जो तफ्तीश के जो हैं तरीके उसको पूरा किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी से भी मदद दी जा रही है। चलिए, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है ना मुदस्सिर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस हमारे सामने आए हैं कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से, तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक वाज़ेह कार्रवाई भी की जाती है लाइसेंस के हवाले से भी, और कम उम्र ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाता है और कैंपेनिंग भी की जाती है।
جاتی ہے. تو اس دفعہ خاص طور پر یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے, یہ اس کے اوپر سی ٹی او لاہور اور ٹریفک پولیس کیا کارروائی کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی سختی کریں گے؟ اس میں جو ہے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. ڈیفنس کے علاقے میں اس طرح کے واقعہ پیش آیا تھا جب ایک ہی خاندان کے جو ہے وہ 6 افراد اسی طرح کے ٹریفک حادثے میں رنگ روڈ پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بڑے نوٹس لیے گئے اور کہا گیا کہ اب جو ہے وہ کم عمر ڈرائیور وہ جہاں بھی نظر آئے گا وہ حوالات میں بند ہوگا. اور اس کے بعد جو ہم نے کاروائی ہم نے دیکھی 2-3 ماہ بعد جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ جاری رہی. اب اس حادثے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی جو ہے یہی صورتحال ہوئی ہے. کریک ڈاؤن دوبارہ سے شروع کر دی گئے ہیں کم عمر ڈرائیور کے خلاف. ان کے خلاف ایف آئی آر کا انداز بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ساتھ سی ٹی او لاہور نے یہ بھی کہا ہے کہ اب صرف کم عمر ڈرائیور جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے. صرف مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں ہوگا بلکہ والدین کے خلاف بھی ہوگا. جو ان کو گاڑی کی چابی دے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا. تو والدین کے حوالے سے بھی سی ٹی او لاہور نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے. ان کے خلاف قانون کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہوا وہ بھی حوالات میں جائیں گے, وہ بھی جیل جو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے. ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا. تو اس حوالے سے مختلف ٹیمیں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں مختلف جو ہے وہ اہم شرحوں پر, جہاں پر بھی جو ہے وہ کم عمر ڈرائیور نظر آتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اس حوالے سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ان کم عمر ڈرائیورز کو پکڑا جا رہا ہے. اور یہ اگر میں بتاتا چلا جاؤں کہ اگر یہ کریک ڈاؤن جاری رہتا ہے, مثلا میں بات کرتا ہوں کہ سال چلتا ہے, یہ 2 سال چلتا ہے, تو پھر تو اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر یہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یہ کریک ڈاؤن پھر جو ہے وہ کم ہو جائے گا, مدھم ہو جائے گا اور پھر روٹین میں جو ہے وہ کم عمر ڈرائیونگ شروع ہو جائے گی, تو پھر اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آئے گا. پھر یہی ہوگا کہ 3-4 مہینے بعد پھر اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آئے گا. پھر ہماری بالکل ایسے ہی کنٹینیوس یہ جو کریک ڈاؤن ہے یا کارروائی ہے یا کیمپیننگ ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے کیسز کے اوپر کم سے کم جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. ڈاکٹر رافیہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ماہر نفسیات ہیں. اور ڈاکٹر رافیہ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں شہریوں کے حوالے سے, خاص طور پر نادرہ جن کا جانا ہوتا ہے. ہم نے کوئی اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہو, ہم نے ایف آر سی بنانی ہو, ہم نے کوئی تبدیلی کرانی ہو, کسی کا شناختی کارڈ گم ہو جائے یا اس طرح کے کوئی بھی ہماری چیزیں ڈاکیومنٹس کے حوالے سے چیزیں ہوں تو ہمیں نادرہ کا رخ کرنا پڑتا ہے, وہاں پر جانا پڑتا ہے. اب کچھ چینجنگز ہوئی ہیں نادرہ کی چیزوں میں, پیٹرن کے اندر. اس کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ چینجنگز کیا ہوئی ہیں اور کس طرح ان چینجنگز کے تھرو لوگوں کو, عام شخص کو جو ہے نا وہ سہولت میسر آئے گی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید شباہت علی صاحب موجود ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں نادرہ کے, ڈائریکٹر پبلک انگیجمنٹ بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. شباہت صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شباہت صاحب, یہ جو نادرہ کے شناختی قواعد میں حالیہ ترمیم ہوئی ہے, اس کی ایک تو مجھے بتائیے کہ وجہ کیا بنی, بنیادی وجہ کیا بنی, اور اچانک سے یہ چینجنگز کیوں کی گئی ہیں؟ کیا اس کی وجہ بنی ہے کہ ایسے اچانک سے چیزیں ہوئی ہیں چینج؟ تقریباً 23 سال کے بعد یہ چینجز کیے گئے ہیں قوانین میں. ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی 23 سال بعد؟ ہمارے ادارے کے قیام کو 25 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم پچھلے 23 سال سے پاکستان کی پاپولیشن کو رجسٹر کر رہے ہیں. پاکستان میں 20.5 کروڑ سے زیادہ افراد اس وقت رجسٹرڈ ہیں نادرہ کے ساتھ. اس رجسٹریشن کے اتنے لمبے عمل میں بہت سی جگہوں پر ہمیں خود احساس ہوا کہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. سسٹم کی لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی ہوئے اور جو چیزیں غلط رہیں ان سے ہم نے خود بھی ایز این آرگنائزیشن لیسن سیکھا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہریوں کی جو ڈاٹا بیس ہے, جو ان کے رجسٹریشن کے ڈاٹا بیس ہے, اس کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے بنیادی ڈاکیومنٹس میں کچھ چینجز کریں. تو ہمارا جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے جس پہ آپ کے خاندان کی کمپوزیشن آتی ہے, اور چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ
जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहलाता है, इसको आप बे फॉर्म भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली हुई है और कुछ और तब्दीलियाँ हैं। तो ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है ये? अच्छा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस पे आपकी सारी फैमिली कॉम्पोजिशन आ रही होती है। अच्छा। आपकी बुनियादी तौर पे दो फैमिलीज होती हैं। एक आपकी पैदाइशी फैमिली है जी। उसमें आप हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, इसको हम अल्फ़ा फैमिली कहते हैं। और दूसरी आपकी फैमिली आपकी मैरिड फैमिली होती है। सो मैरिड फैमिली के अंदर हस्बैंड, उनके साथ उनकी वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, इसको हम बीटा फैमिली कहते हैं। तो आपकी सारी कॉम्पोजिशन यकजा हो जाती है, सब अफराद एक कागज़ पर आ जाते हैं और उनके रिश्ते वाजे हो जाते हैं। आपको ट्रैवल के लिए चाहिए होता है, वीज़ा के अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, एजुकेशन के लिए बाज़ जगह पर मांगा जाता है, जायदाद में तकसीम के लिए मांगा जाता है। तो इसलिए ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा चला आ रहा था और ये एक नॉन लीगल डॉक्यूमेंट था। अब हमने इसको एक लीगलाइज डॉक्यूमेंट कर दिया है, जिससे मुराद ये है कि अब अगर कोई फ़र्द अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर अपने ख़ानदान के बारे में पूरी मालूमात नहीं देगा तो उसके लिए मसाइल का बायस बन सकती है। सिर्फ यही एक चेंजिंग की गई है इसके अंदर? नॉट ओनली दैट, हमने इसके फॉर्मेट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जो लोग डिसीज्ड हैं फैमिली में, अब उनके नाम के साथ डिसीज लिखा आता है। इसके अलावा अगर कोई ले पालक बच्चा है उसके लिए अलग से एक अरेंजमेंट किया है, वो अलग से वहाँ पर शो होते हैं। अगर आप अपनी अल्फ़ा और बीटा फैमिली को यकजा करके देखना चाहें वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो अब हम आपसे इस पर एक अंडरटेकिंग लेते हैं। अच्छा। आप उसको जब अंडरटेकिंग को साइन करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप ये पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन के बारे में जो मालूमात हैं वो दुरुस्त दी हैं और कोई मालूमात छुपा नहीं रखी। इसमें हमने ये प्रोविज़न भी दे दिया है कि अगर आपकी फैमिली में कोई फ़र्द मिसिंग है, आपका कोई बहन भाई या बच्चा मिसिंग है, तो आप उसकी इंक्लूजन भी करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप अपनी फैमिली की मुकम्मल कॉम्पोजिशन देख सकती हैं। नादरा की एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी ऐप, अगर आप इसको डाउनलोड कर लें और एक मरतबा इसको लॉगिन कर लें तो आप अपनी फैमिली की मुकम्मल कॉम्पोजिशन देख सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये FRC का हम सुनते हैं, हमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ गई थी जब हम कॉलेज में होते थे, या उसके लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये FRC होता क्या है? ये फैमिली रजिस्ट्रेशन ही है या ये कुछ और है? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसकी बुनियादी तौर पे आपको ज़रूरत पड़ती है ये दिखाने के लिए कि आप किस फैमिली के फ़र्द के। ठीक है, मतलब ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लोगों के लिए आसान हो गई हैं। पहले जो नादरा में जाना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन हर चीज़ जो अपने पास रख सकते हैं अपने फ़ोन में। एब्सोल्युटली, ये अच्छा कि आपने पूछ लिया। जो नादरा की एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी ऐप, उसके अंदर हमने एक फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया है जिसको कहते हैं डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट जी बिल्कुल ऐसे क्रिप्टो करेंसी का एक वॉलेट होता है जिसके अंदर आपकी करेंसी सेव होती है। तो अगर आप डिजिटल वॉलेट्स के अंदर एक मरतबा अपने कार्ड का QR स्कैन कर लें, QR कोड होता है आपके कार्ड पर, अगर आप वो स्कैन कर लें, आपके कार्ड की कॉपी आपके फ़ोन के अंदर परमानेंटली सिक्योर हो जाएगी। आपका खुदा ना खास्ता फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका पर्स चोरी हो जाता है, आप दूसरा फ़ोन लीजिए, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसको लॉगिन पासवर्ड दें, आपकी शनाख्ती कार्ड आपके उसमें मौजूद होगा। सिमिलरली इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको आपका FRC जिसकी आप बात करेंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी इसके अंदर डाउनलोड हो जाता है एंड यू कैन यूज़ इट वेयर एवर यू वांट टू। ख़ास तौर पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, जगह जगह ये सबूत पूछा जाता है कि आप ही के बच्चे हैं, कौन है। तो वो अगर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपके फ़ोन में नादरा की आपके अंदर महफूज है तो काफ़ी अरसे तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई गैर मुतल्लिका शख्स जो है ना वो फैमिली रिकॉर्ड में आ जाता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुनियादी तौर पे जिन दूसरे मुल्क के लोगों ने जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं, वो ऐसे कर रखे हैं कि उन्होंने अपना इंदराज दूसरे ख़ानदानों के अंदर करा रखा है। कई जगहों पर किसी फैमिली मेम्बर की रजामंदी से ही ऐसे होता है। अच्छा, अब आपके इल्म में नहीं होगा कि आपके किसी छोटे भाई ने या आपकी बहन ने जो आपसे बहुत दूर रहती हैं फैमिली में किसी और को इंक्लूड कर रखा है। सो नादरा ने ये कर दिया है कि आप अपने मोबाइल में हमारी सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन चेक कर लें, और अगर उसमें कोई शख्स ऐसा है तो आप वहीं पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी ये मेरे ख़ानदान का मेंबर नहीं है।
آگے اپنی ایڈمنسٹریٹو کاروائی ہم کریں گے, ہم اس سے بلا کر اس کی ثبوت دوبارہ مانگیں گے اور جو پروسیس ہے وہ کریں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے, موبائل فون یوزر نہیں ہے, اسمارٹ فون یوزر نہیں ہے, آپ نیئرسٹ نادرا سینٹر چلے جائیں. آپ جب نادرا سینٹر جائیں گے اور آپ ایف آر سی مانگیں گے تو آپ کو آپ کی پوری جو فیملی کمپوزیشن ہے وہ پہلے دکھائی جائے گی, اور اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ پرابلم ہے تو آپ وہاں پہ رجسٹر کروا لیں کہ جی یہ فرد میرے خاندان کا حصہ نہیں ہے اور رجسٹرڈ ہے, یا ادروائز کہ میرے خاندان کا ایک فرد مسنگ ہے تو کائنڈلی اس کو ایڈ کر لیا جائے. ہم دیر ان دن ایڈ تو نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو نوٹ کر کے اس کے حساب سے کاروائی سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ سارا کہ اگر اس طرح کا کوئی مسنگ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ کتنی دیر میں اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے, سالو کرنا ہے, بیکاز کوئی نہ کہیں اوپر نیچے ٹائم ہو ہی جاتا ہے. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور ولنگنیس آف دا فیملی ممبرس, کیونکہ اگر اس کے ان کیس کہ وہ سیف اور میرا کوئی بھائی ہے اور وہ مسنگ ہے, غلطی سے مسنگ ہے, اور ہم باقی بہن بھائی اس کی میں سے کوئی بھی جا کر اس کی اٹیسٹیشن کر دیتا ہے کہ جی یہ تو غلطی سے باہر ہو گیا فیملی سے, تو دین اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو پھر ذرا پروسیس تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن بہرحال وہ ایک دفعہ ہمارے رڈار میں آ جائے کہ یہ فلاں فرد ہے جو اپنی فیملی کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پروسیس ہم کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا خواتین کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا خواتین کے شناختی کارڈ میں بھی کوئی سہولت کی گئی ہے؟ خواتین کا ایک ایشو یہ تھا کہ بعض خواتین اپنے ہسبینڈ کے نیم کو کیری نہیں کرنا چاہتی, وہ چاہتی ہیں کہ وہ والد کے نام کو ہی کیری کریں, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا نام اور اس کے بعد نیچے ہوتا ہے والد یا شوہر کا نام, تو وہ شوہر کا کمپلسری سمجھتی ہیں کچھ خواتین, اور کچھ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ والد کا کنٹینیو کریں. اس صورت میں اگر وہ پاسپورٹ بنوانے جاتی تھیں تو وہاں پر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا, کہتے تھے آپ جا کر ہسبینڈ کے نام کا اندراج کروا کے لائیے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. اگر خاتون چاہیں کہ وہ اپنے والد کے نام کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ کر سکتی ہیں. اس سے ان کے پرٹیکولرز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو پاکستان کا کوئی محکمہ مجبور اب نہیں کہ چونکہ ہمارے قوانین کا حصہ بن چکا ہے تو اب کوئی اور محکمہ بھی ان کو مجبور نہیں کرے گا. صحیح. سو یہ ہمارے اقدامات ہیں عوام کے لیے. صحیح ہے کہ یہ کچھ چینجنگز ہیں نادرا کی طرف سے اپنے سسٹم میں کی گئی ہیں, عام لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے کی گئی ہیں, جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ سید شباہت علی صاحب موجود تھے. شباہت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور ان تمام تر چینجنگز کے اوپر ہم سے بات کی ہے, اور آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ جائیں وہاں پر اور آپ لوگوں کو سہولیات میسر آئیں, آسانی سے جو چیزیں ہیں وہ ہو پائیں. جناب, مانسون کا موسم جہاں گرمی سے راحت دیتا ہے وہیں نمی, پسینہ, گندگی اور جراثیم کی افزائش بھی ہماری جو جلدی بیماریاں ہیں نا ان کو دعوت دیتے ہیں. اب اس موسم میں ایکنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, فنگس کے کیسز بہت آتے ہیں, الرجی, خارش جیسی شکایات ہیں نا وہ عام ہو جاتی ہیں. اب ایسے میں صرف مہنگے کیمیکلز پر مبنی پروڈکٹس پر انحصار کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ قدرتی جڑی بوٹیوں اور سادہ گھریلو ٹوٹکوں کی طرف رجوع کرنا زیادہ مؤثر اور محفوظ ثابت ہو سکتا ہے. تو آج ہم یہی جانیں گے کہ اس موسم میں ہم ایسے کون سی ریمیڈیز کر سکتے ہیں جن سے ہماری اسکن جو ہے نا وہ اس کی صحت برقرار رہے, اس کو حفاظت میں لے کر آیا جا سکے. کون سے ایسے ہربل نسخے ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے نیر آپا ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کیا کیا جو ریمیڈیز ہیں وہ ہمارے لیے لے کر آئی ہیں. نیر آپا, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. نیر آپا, باہر تو مانسون کا موسم ہے, برسات کا موسم ہے جس کو کہا جاتا ہے, اور اس برسات کے موسم میں جہاں بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, لیکن بارش کے بعد جو ہبس اور گرمی کا جو ایک دوبارہ سے کہہ لیں کہ موسم اٹھتا ہے نا تو وہ بڑا ہی گندا موسم ہے, کہوں گی کہ پسینہ اتنا آتا ہے اور آپ اے سی کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے کیا آپ ریمیڈیز لے کر آئی ہیں؟ ایکنی بہت زیادہ ہمیں ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل, اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ والا جو برسات کا موسم ہے, حبس کا موسم ہے, اس میں سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک نعمت ہے. جو لوگ اے سی کے اندر سارا دن رہتے ہیں, پسینہ نہیں اپنے آپ کو آنے دیتے, تو آگے آنے والی پھر جو موسم چینج ہوتا ہے, سردیاں شروع ہوتی ہیں, اس کے اندر جوائنٹس پین کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جانا, اور جن لوگوں کو سکن الرجیز اور جن لوگوں کو اس طرح کے مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں وہ سویٹنگ باڈی سے نہ نکل پانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے
कि थ्रू स्वेटिंग हमारी बॉडी के अंदर जितना हमारी टॉक्सिक है जो हमारी जिल्द के ज़रिए बाहर निकलता है पसीने के थ्रू, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, अगर वो नहीं निकलेगा आपकी जिल्द के अंदर रहेगा तो जिल्द की काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स और बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए पसीने को आने दें, उसको भी इंजॉय करें, हर मौसम को इंजॉय करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पंजाब के अंदर तो चारों मौसम जो है ना वो पीक पे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें यह है कि जो लोग, मैं पहले बात करूंगी कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्नी स्किन है, ठीक है, और गर्मी ये मानसून में तो बहुत ज़्यादा एक तो एक्नी होती है ना, चेहरे पे पूरी बॉडी पे फोड़े फिंसियाँ जो है वो शुरू हो जाते हैं बच्चों के, और ख़ासकर देहात वगैरह के जो हमारे लोग हैं जो सारा दिन एसी वगैरह में नहीं रह सकते, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते और उन्हें नहीं पता होता कि उनके इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हैं कि उनको वो यूज़ करते हुए अपने इन मसाइल से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं चेहरे की बात करूँगी कि जिन लोगों के जो है वो फेस के ऊपर बहुत ऑयल आता है, एक्नी होती है, इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो इस मौसम में आप देखें कि नीम आपको पता है हर मौसम में होती है, और नीम से अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है ना वो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप जो है जिन लोगों के ये इशू है, आप क्या करें कि 8 दिन के लिए आप जो है ना ये पानी बनाएं। पानी किस तरह से बनाना है, सिंपल, आप 2 मुट्ठी भर के जो है वो नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते 1 जग पानी लें, उसमें पका के स्टेन करके 2 बोतलें भर के फ्रिज में रख लें। सही, ठीक है। ये आपका एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल जो है ना एक वाटर रेडी हो गया आपके हेड टू टो के लिए, ठीक हो गया। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताती हूँ। और एक ऑयल आप बना के रख लें। जिन लोगों की इस मौसम के अंदर भी जो है वो ड्राई स्किन हो जाती है, ऑयली स्किन के लिए भी इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपल, आपने जो सफ़ेद तिलों का तेल लेना है, उसके अंदर आपने, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, नीम के पत्ते और निमोलिया, जो नीम का फल है उसको कूट के आपने डाल लेना। 10 से 15 दिन के बाद जो है ये आपका नीम ऑयल रेडी हो जाएगा। ये 2 चीज़ें आपके पास ये वाला मौसम, बल्कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब इनको यूज़ आपने किस तरह से करना है, आपने यूज़ इनको इस तरह से करना है कि अगर बार बार आपको जो है वो ऑयल आ रहा है, पसीना आ रहा है, बाथरूम में जा रहे हैं, बार बार आपने फेस वॉश से और साबुन से मुंह नहीं धोना, एक दफ़ा धो लिया बहुत है, ठीक है। उसके लिए मैं एक आपको जो है ना वो फेस वॉश, ऑर्गेनिक जो आपका एक्सफोलिएटर भी है और आपका फेस वॉश भी है और आपकी एक्नी को भी ड्राई करेगा। सिंपल, हमने हमारा जो गंदम का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, 1 टेबलस्पून आपने ये लेना है और इसके अंदर आपने माल्टे के खुश्क छिलके जो है वो उसको ग्राइंड किया हुआ पाउडर, ये आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाता है। 1 टेबलस्पून अगर आपने गंदम का आटा लिया, आधी चाय की चम्मच आपने माल्टे के छिलकों का पाउडर डाल लेना है, ठीक है, और आधी चाय की चम्मच ही आपने नीम के जो पत्ते खुश्क करके इसका पाउडर बना लेना है, आधी चाय की चम्मच आपने इसकी डाल लेनी है, ठीक हो गया। और नीम के पानी के अंदर आपने इसको जो है एक पेस्ट सी जो है ये बना लेनी है। सही, ये आपकी कंप्लीट गर्मी के मौसम में कोई भी आपका जो है वो इशू चल रहा है, ये उसकी जो है वो एक तरह से ट्रीटमेंट है। ये आपका एक्सफोलिएंट भी हो गया और फेस वॉश भी हो गया, इसके साथ मुंह धोना है हमने जी। इसके अंदर आधी चाय की चम्मच आप रीठे का पाउडर, सोपनट, ठीक है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि रीठे सिर्फ बालों के अंदर ही जो है वो आप यूज कर सकती हैं, लेकिन आप इसको फेस के लिए यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसके मैजिकली जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। आप इन पाउडर्स को जो है वो मिक्स करके एक डिब्बे में उपटन की तरह बना के भी रख सकते हैं। जब आपने वॉश करना है, आप नीम के पानी के अंदर या दही के अंदर इस पेस्ट को आपने, नाइट में आप फारिग हुए हैं, आपने इस पेस्ट को पूरे फेस के ऊपर लगा लिया, 10 से 15 मिनट ये पेस्ट लगी रहे, ठीक है। उसके बाद आपने बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करते हुए चेहरे को आपने जो है ना वॉश कर लेना। ये वाला जो आपका पेस्ट है ये 3 in 1 है। ये आपका फेस वॉश भी है, ये आपका डीप पोर क्लींजर भी है, और प्लस अगर टैनिंग हो गई है, बहुत ज्यादा डेड लेयर, डेड स्किन बन गई है, तो ये उसको भी रिमूव करेगा। क्या बात है। और स्किन को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये वाला पाउडर आप बना के रख लें, ये बेहतरीन है। और तो ये जब भी मुंह धोए तो इसी से धोए या दिन में 1-2 दफा धो ले? दिन में 1 दफा, नाइट में आप इसको लगाएं, ठीक है। और अगर किसी की जो है वो जैसे एक्नी है, पस वाली एक्नी है, तो इसको आधा घंटा लगा रहने दें, ओके। ये उसको जो है वो, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है,
तो ये काफ़ी हद तक जो आपकी एक्नी बन रही है ना उसको जो है ना वो स्टॉप कम कर कर देगा, देगी, कम ठीक है, कर देगी। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है बालों की, क्योंकि बाल भी जो है वो इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग गिरते की हैं। वजह से ऑयल आ रहा है, उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है। अच्छा। इस मौसम में भी बार बार जो है वो सर धोने से, नहाने से जो है वो खुश्की हो जाती सही, है। ठीक है। उनके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो टोनर है, क्योंकि इस मौसम में ऑयल लगाया भी नहीं जाता और बरसात के मौसम में ऑयल आपने लगाना भी नहीं है। अच्छा, नहीं लगाना बालों बिल्कुल में? भी नहीं लगाना ओह। बरसात, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ऑयल की सिक्रेशन इतनी ज्यादा हुई है, ओके। आपके स्कैल्प पे, फेस पे, आपकी बॉडी पे जो है वो इतना ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो आप ऑयल लगा के बाल नहीं भी गिर रहे तो आपके बाल गिरेंगे। ओके। उसके लिए जो मैं आपको बताऊंगी सबसे बेहतरीन टोनर जो कि आपकी डैंड्रफ को भी ठीक है। खत्म करेगा, आपकी जो है वो स्किन की जो ड्राईनेस है, जो भी इशूज, उसके बाद बहुत ज़्यादा इशू होता है कि इस मौसम में जुएं जो है वो पड़ जाती हैं, खासकर जो बच्चियां स्कार्फ होती वगैरह हैं, करती हाँ, हैं, स्कार्फ बच्चे हैं लेती स्कूल हैं या जाने बच्चे जो वाले होते हैं, हाँ। तो ये सबके लिए ठीक है। बेहतरीन है। बालों के कोई भी मसले मसाइल बरसात के मौसम में उसके लिए सही। बेहतरीन है। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है वो पानी लेना है, सही। उसके अंदर हमने जो नीम का पानी जो है वो बनाया है, आपने नीम का पानी इसके अंदर डाल लेना ठीक है। है। 1 गिलास अगर आपका पानी है तो आधा गिलास आपने आपने नीम के पत्तों का पानी ठीक है। इसके अंदर डाल लेना है। चंद इसके अंदर आपने जो है ये लौंग डाल लेनी है, ठीक है। लौंग ठीक आपको है। पता है बालों के लिए कितनी जबरदस्त है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो ½ टीस्पून के करीब जो है वो आंवला पाउडर, आंवला आपको पता है कि बालों के लिए कितना ज़बरदस्त है, एक आपका ये हेयर टॉनिक बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। आपने इसको इसके अंदर डाल के शेक कर ले, ये आपका जो है वो 8 से 10 दिन के लिए जो है ये टोनर बन गया, सही। ठीक है। ठीक तो है। आपने जब बाल धोए हैं, बाल धोने के बाद आप अपने बालों पे जो है वो इसको स्कैल्प पे जो है वो इसको स्प्रे कर लें अच्छा। और ड्राई होने दें। सही। या फिर जब आपने अगर बाल धोने हैं तो उससे पहले भी कर सकते हैं इसको? नहीं, हाँ जी बिल्कुल, बाल धोने या हैं। बाल धोने नहीं, के बाद? देखिए, बाल धोने से पहले अगर ऑयल आया हुआ है, आपके स्कैल्प डर्टी हैं, डर्ट तो है, इसका उनके फायदा अंदर, नहीं होगा? इसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक तो है। लेकिन बहरहाल कोई फायदा इसका नहीं होगा क्योंकि एक पूरी डेड लेयर आपके स्कैल्प पे है। ठीक है। तो बेहतर है बाल जब आपने वॉश कर लिए हैं, इसको आप जो है वो स्प्रे कर ले, इसको ड्राई होने दे, ये लगा रहे, इसका कोई नुकसान अच्छा, नहीं है, ठीक है। ये बालों के अंदर लगा रहेगा, ये ड्राई हो जाएगा, इसमें तो ओके। फील भी नहीं होना। सही। हाँ, अगर आपको स्मेल का इशू आ रहा है कि नीम के पत्तों की थोड़ी स्मेल है या इसके अंदर जो है वो आंवले की थोड़ी सी उस तरह से स्मेल हाँ। आती है, तो आप इसके अंदर कोई भी अच्छा एसेंशियल ऑयल जो है वो एक आधा डाल सही सकते है, हैं, या थोड़े ठीक से है। आप इसमें जब नीम को उबालेंगे तो इसमें अगर आप पुदीना और एक लेमन जो है वो निचोड़ दें। छिलका, अच्छा, लेमन छिलका। का छिलका आप साथ बॉईल ठीक कर है। लेंगे तो वो पेपरमिंट और लेमन का एक अरोमा मिलके बहुत अच्छी एक खुशबू आएगी, सही है, जो ठीक सारा है। दिन आपको जो है वो रिलैक्स और फ्रेश रखेगी। ठीक ठीक है। तो ये बालों के लिए आप जो है वो इसको यूज़ करें। उसके बाद अगर जिन लोगों की जो है वो डैंड्रफ है, गर्मियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, किसी भी तरह नहीं जा रही, तो जो ये वाला नीम ऑयल है, जितना ये नीम ऑयल है उतनी ही आपने ग्लिसरीन लेनी है, ठीक क्योंकि है। जो ग्लिसरीन है ये डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए कमाल की चीज़ है। तो आप जो वीकेंड पे, ठीक है, या नाइट में आपने बालों को धोया, आपने नीम ऑयल लिया 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल के कॉटन के साथ आप अपने धुली हुई स्कैल्प के अंदर जो है ना टैप 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 करके सारी आप स्कैल्प पे लगा लें, ओवरनाइट लगा रहे। सुबह में आप शैम्पू से वॉश कर लें, 2 से 3 दफ़ा अगर आप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये सिर्फ बरसात के लिए नहीं, आगे भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में भी रहती है ना जी, लोगों जी, को बिल्कुल। डैंड्रफ का प्रॉब्लम, तो ये तब भी कर सकते हैं आप। जी, जो सस्ता तरीन और जो बेहतरीन खारिश का जो है वो प्रॉब्लम है, उसके लिए सिंपल सरसों का तेल लें, सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके जितना सरसों का तेल है उससे आधी उसमें जो है वो हल्दी डाल दें। अच्छा। ये एक मरहम सी आपकी बन जाएगी। सही है। तो जिन लोगों को ये वाला इशू होता है बहुत ज्यादा, नहाने के बाद आप देखें कि आप ये वाली मरहम जो है ना वो लगा के थोड़ा सा जो है वो मसाज कर ठीक दें, है। तो इसके साथ वो जख्म भी हील हो जाएंगे और खारिश वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सही है कि ये गर्मियों में और ख़ासतौर पर जो मौसम में बरसात है, इसमें अगर कोई भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है, एक्नी हो गया है, फिंसी फोड़ियाँ निकल आए हैं, हाँ उसके अलावा बालों का मसला हो गया है, तो आप ये सारी रेमेडीज़ कर सकते हैं और फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अभी के लिए नैयर आपा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई और इतनी अच्छी रेमेडीज़ आप हमें देकर जा रही हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एलपीजी के हवाले से, एलपीजी की कीमतों के हवाले से, और आने वाले दिनों में जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। तो उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना फ़ाहद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाहद साहब, सबसे पहले तो एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल क्या एलपीजी की कीमत चल रही है मार्केट में? ओगरा ने क्या रेट तयन किए और मार्केट में क्या? एलपीजी की जो कीमत है ना, ये शुरू से मुतनाज़ ही रही है। अच्छा। अभी भी सूरत हाल ये है कि एलपीजी को जो ओगरा ने कीमत मुकर्रर की है जुलाई के लिए, माह जुलाई के लिए, वो है 241 रुपये। अच्छा। मगर मार्केट में इस वक्त 280, 270, 300 रुपये फ़ी किलो तक भी जो है वो पोश इलाकों में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा, ओगरा हर माह जो है वो एलपीजी की कीमत मुकर्रर करता है, मगर उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ये हैं कि कहीं भी उस कीमत पर जो है वो एलपीजी दस्तयाब नहीं होती। एलपीजी जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और दुकानदार हैं, उनका कहना है कि ओगरा पुरानी जो है वो 2017 के एसओपीज़ पर जो है वो अमल दरामद कर नहीं, उस पर जो है वो कीमतें डिसाइड करता है। 2017 में अगर किसी व्हीकल की कीमत, जो लोडर व्हीकल है, उसकी कीमत, उसका किराया जो है वो अगर 8,000 रुपये था, तो अब उसका किराया 22,000 रुपये है। तो वो उस हिसाब से जो है वो ओगरा उसकी कीमत मुकर्रर नहीं करता। जो रियलिटी है वो 2016-17 के हिसाब से इसकी कीमत जो है वो मुकर्रर करता है, सारी चीज़ें डाल के। अब सूरत हाल ये है कि ओगरा अगर 241 रुपये मुकर्रर कर रहा है एलपीजी की कीमत, तो मार्केट में एलपीजी 280, 290, 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से कल जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है कि 14 जुलाई को जो है नासिर बाग में एहतजाज किया जाएगा। अच्छा। वो जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, इसके साथ सिविल डिफेंस, पुलिस, ये इनकी जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एलपीजी दुकानदारों के ख़िलाफ़। डिकेंटिंग, और डिकेंटिंग बेसिकली होता है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को मुंतकिल करना। सही, ठीक है। हर दुकान पे इसी तरह बिकती है एलपीजी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। छोटे सिलेंडर दस्तयाब नहीं है। इस चीज़ के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? सबसे बड़ा मसला ये है कि ओगरा और ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत आज तक इनको कोई एसओपीज़ देने के लिए तैयार ही नहीं है। एसओपीज़ नहीं दे रही। 80% एलपीजी इस्तेमाल हो रही है। आप देखें मौसम सरमा में गैस कितनी क्या सूरत हाल होती है, लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। और अब तो गर्मी में भी जो है वो एलपीजी इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि पाकिस्तान में 80% आबादी है जो कि एलपीजी इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ लाहौर में 1400 मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी। और देखें ना, इतनी तादाद में इतना बड़ी ये एक इंडस्ट्री समझ लें इसको बन चुकी है एलपीजी जी। अगर उसको एसओपीज ही नहीं मिलने, उसको उनके तरीके से काम करने का जो है वो इजाज़त ही नहीं मिलनी, तो ये तो एक अजीब किस्म की जो है सिचुएशन बन जाती है। हज़ारों लोग, हज़ारों ख़ानदान इससे वाबस्ता हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग इसको बेच रहे हैं। सही। आपके जितने भी रक्शे हैं सारे, उनमें अक्सरियत जो है वो एलपीजी पे चलती है। जितनी लोडर गाड़ियाँ बड़ी वो एलपीजी पे चलती हैं। छोटे दुकानदार जितने भी खोखे, उसके बाद होटल, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स, सारे ही एलपीजी चलती है। हाँ जी, ठीक है। और अगर एलपीजी इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल होती है, इतनी उसकी खपत है, तो फिर उसके लिए एसओपीज हुकूमत को सोचना पड़ेगा, वरना जो है वो मामला बड़े। अगर फर्ज करिए 14 तारीख को एहतजाज करते हैं, एलपीजी की दुकानें बंद करते हैं ये, तो फिर एक दिन सारा क्या लोग करेंगे। और वैसे भी फ़ाहद साहब, आगे जिस तरह जो कुदरती गैस है वो तो ख़त्म होने के दहाने पर है, तो आगे तो नया कनेक्शन भी कोई नहीं लग रहा है। हाँ जी, तो ये देखें ना, ये सूरत हाल है इस वक्त। अब ऑल पंजाब एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। 14 जुलाई को नासिर बाग में उन्होंने एहतजाज करना, और उनका कहना है कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार, उसका मुआशी कत्ल है, वो उसके खिलाफ, उसका जो है वो दुकानें बंद करें, हमें एसओपीज़ दें, हम उस पर अमल दरामद करते हैं। हुकूमत जो एसओपीज़ देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। अगर आपने एसओपीज़ नहीं देने और इस तरह
कार्रवाइयाँ करनी है तो ये उनका मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने SOPs नहीं देने और कार्रवाइयाँ आपने करनी है तो छोटा दुकानदार तो ख़त्म हो जाएगा ना, पूरा एक ख़ानदान ख़त्म हो जाता है अगर एक दुकान बंद होती है तो बाकी हादसात भी आपके सामने हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई हादसा समझ में आ रहा है, सिलेंडर फटने में आ रहा है। गैर मेरी सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ भरपूर वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब गैर मेरी सिलेंडर्स के जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। गैर मेरी सिलेंडर आपके इधर मार्केटों में बिकते हैं, सरेआम बिक रहे हैं, कोई उनको जो है वो पूछने वाला नहीं है। और ये सूरत हाल इस तरह चल रही है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पर बड़े सख्त SOPs बनाने चाहिए ताकि एक तो इंसानी जानें भी जो है वो महफूज रहे और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आपका इस वक्त ये इंडस्ट्री बनती जा रही है, इससे जो वाबस्ता लोग हैं उनके भी घर चलते रहे। हाँ जी, उनको भी आसानी जो है ना वो मुहैया करनी चाहिए। हमें अब्दुल्ला महमद साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, सदर हैं ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब 14 जुलाई को एहतजाज की जो है ना वो कॉल दी गई है, लाहौर में नासिर बाग में एहतजाज आप लोगों ने करना है, तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से अब ये जो आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं? बहुत मैम, आपने हमें मौजूद किया कॉल पे और फहद साहब हैं मौजूद है, उनको भी अस्सलाम वालेकुम जी। मसला बड़ा सीधा है कि आप सबको मालूम है कि ये LPG जो है ये बड़ा कमजोर तबके का ईंधन है, गरीब लोग ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं और 85% पाकिस्तानी जो है इससे मुस्तफीद होते हैं। और आपको पता है एनर्जी क्राइसिस भी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तकरीबन 5000 मैट्रिक टन इसकी योमिया कंजम्पशन है और इसका जो 30% है वो लाहौर कंजम्प करता है। तकरीबन 1400 मैट्रिक टन गैस जो है वो लाहौर में कंजम्प होती है, कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करता है। और बदकिस्मती से इसका कोई मैकेनिज्म, कोई तरीकाकार जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि इसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन सा तरीकाकार जो है वो अमल में लाया जाए। तो हम तकरीबन अच्छा 20 साल से इसकी बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। राना फाज साहब इसके गवाह हैं, उनको पता है कि इसको किसी तरह बेहतर किया जाए, लेकिन हर 6 माह बाद दिल्ली हुकूमतें क्रैकडाउन शुरू कर देती है और इसको एक इलीगल का नाम दिया गया है। हालांकि आप लोगों को पता है कि गरीब लोग और कमजोर कंज्यूमर जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान में गुर्बत जो है इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 2016 के आदाद शुमार के मुताबिक जो 65% लोग इसको यूज करते थे, अब 2025 में 85% लोग जो है ना वो इससे मुस्तफीद होते हैं। तो इसका कोई लायमल जरूर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना ओगरा इसमें मुखलस दिखाई दे रही है, ना कोई वफाकी हुकूमत इसमें मुखलस दिखाई दे रही है। हमने 12 जो हमारे मिनिस्टर है एनर्जी के उनसे हमने रजू किया, लेकिन वो भी इसमें मुखलस दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन ओगरा से हमने रजू किया, वो भी मुखलस दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इनका मकसद सिर्फ यह है कि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा तंग किया जाए, बिजनेस कारोबार को खत्म किया जाए और लोगों को माशी बदहाली उनकी करके उनको खुदकशियों पे मजबूर करे। हमने तकरीबन ये 2-3 माह हो गए हैं, राना फहद साहब भी इसके गवाह हैं कि हम हर जिले में हर DC के पास गए, हम कमिश्नर के पास गए, हम डायरेक्टर के पास गए, होम डिपार्टमेंट गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मजबूरन हमने 14 जुलाई की कॉल दी है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का 14 जुलाई को जो है एहतजाज बुलाया गया है। उन्होंने लाहौर में नासिर बाग में जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना है। LPG के हवाले से हमारे साथ अब्दुल्ला खान महमद साहब मौजूद थे, हमें अपना मौक़िफ़ शेयर किया। फ़हाद अमीन भी हमारे साथ मौजूद है। फ़हाद साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप भी आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।